السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں ڈاکٹر بننے کے جو خواب دیکھتی تھی وہ ادھورے رہ گئے کیونکہ نمبر بہت کم آئے تھے۔ مجبوراً میں نے نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا تاکہ میرا ڈاکٹری کا شوق پورا ہو سکے۔ ہسپتال سے ملنے والی تنخواہ کا زیادہ حصہ میں اپنی ماں کو لا کر دیتی تھی۔ وہ رقم میرے گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ خدا جانے یہ پیسہ کیا چیز ہے کہ ایک اچھے بھلے ایک شریف انسان کو بھی بے غیرت بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے اتنے کم پیسے لانے پر کوستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی اتنے ہی پیسے کماؤں جتنی میری ساتھی نرسیں کماتی ہیں۔ میری ماں مجھے اکثر اس طرح کے تانے دیا کرتی، فلاں کی لڑکی نرس لگی ہے، 2 مہینے میں ہی گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، فلاں نرس کے گھر LCD اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ گھر کا یہ عالم تھا تو ہسپتال کا اس سے بھی برا۔ میری ساتھی نرسیں اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے تو اپنے میک اپ پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ نئے نئے ڈیزائنوں کے کپڑے، نئے نئے فیشن اور ٹیکسی میں آنا جانا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن میں نے بھی اس بات سے غرض نہ رکھی۔ مجھے تو صرف اپنے آپ سے اور اپنے کام سے غرض تھی۔ میں دن رات کوشش میں رہی کہ کسی نہ کسی طرح BSc کر کے کوئی اور اچھی نوکری ڈھونڈ لوں۔ میری ساتھی نرسیں مجھے چڑھایا کرتی تھی۔ انہوں نے میرے عجیب عجیب نام رکھ چھوڑے تھے۔ وہ میرے اصل نام خوش بخت کی بجائے مجھے بدبخت کہتی۔ وہ مجھے پینڈو بھی کہا کرتی تھی، مگر مجھے ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی نہایت ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتی اور گھر لوٹ آتی۔ پھر میری زندگی کے افق پر بد نصیبی کا ایک ایسا دن طلوع ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس روز اردو کے اخبار میں غیر ملک کے لیے نرسوں کی بھرتی کا اشتہار شائع ہوا جو ایک ریکروٹنگ ایجنسی کی طرف سے تھا۔ میرے باپ کی نظر اخبار کے اس اشتہار پر پڑ گئی اور وہ اخبار گھر لے آئے۔ میں نے بھی وہ اشتہار پڑھا۔ کسی پرائیویٹ ہسپتال کے لیے چند نرسوں کی ضرورت تھی۔ اشتہار میں بڑی شاندار تنخواہ اور دیگر سہولیات کا لالچ دیا گیا تھا۔ میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی اور اسے نظر انداز کر دیا، لیکن میرے ماں باپ نے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں یہاں درخواست دے دوں۔ میں نے لاکھ سر پیٹا کہ میں جلد ہی BSc کر لوں گی، اس کے بعد مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن وہ تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ میں باہر جاؤں اور ان کے لیے قیمتی چیزیں لاؤں اور تحفے بھیجوں۔ میں نے بالآخر ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ایجنسی والوں نے نرسیں نوجوان اور صحت مند مانگی تھی اور ہر درخواست کے ساتھ درخواست دہندہ کی تازہ تصویر بھی ضروری تھی۔ مجھے اس وقت ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ میرے ساتھ میرے ہسپتال کی کئی نرسوں نے بھی درخواستیں دی تھی۔ وہ سب تو انتظار کرتی رہی، مگر مجھے انٹرویو کی کال آ گئی۔ انٹرویو والے دن میری ماں نے مجھے خاص طور پر اپنی نگرانی میں نہ صرف تیار کروایا بلکہ میک اپ کرنے کا بھی حکم دیا۔ میں جب بن سور کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ میری ماں مجھ سے زیادہ بنی سوری میرے ساتھ ہی گئی تھی۔ جب ہم اس دفتر میں پہنچے تو میری ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے ہم کسی یورپی ملک میں آ گئے ہوں۔ انٹرویو کے لیے صرف 3 لڑکیوں کو بلایا گیا تھا۔ میرے علاوہ جو 2 تھیں وہ اکیلی ہی آئی تھی اور معمولی شکل و صورت کی مالک تھی۔ ایک خوبصورت اور نازک اندام سیکرٹری نے ہماری رہنمائی کی، ایک ایئر کنڈیشنڈ کمرے کی طرف کی جہاں ایک میز پر 3 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے تھے اور کمرے کی سجاوٹ پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی وہاں بیٹھ گئے۔ کمرے میں کرسی خالی پڑی تھی، کوئی کمرے میں موجود نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیچھے والا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی قیمتی سوٹ میں ملبوس سمارٹ سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کچھ اتنی پرفریب تھی کہ میں اور میری ماں دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، اس نے اپنے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ آپ کی تعریف؟ نظروں ہی نظروں میں میری کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی میری بیٹی ہے روزی، میری ماں نے بڑی انکساری سے کہا۔ آپ کو ان کی بڑی بہن سمجھ رہا تھا۔ اس نے عورت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی فکر میں میری ماں کو رام کر لیا۔ اسی اثنا میں ایک باوردی ملازم ہمارے لیے چائے لے کر آ گیا۔ زندگی میں اتنے شاندار اور قیمتی برتنوں میں شاید ہم نے پہلی مرتبہ چائے پی تھی۔ میری ماں تو کیا میں بھی آہستہ آہستہ اس کے تلسم میں پھنستی اور اس سے مرعوب ہوتی جا رہی تھی۔ چائے پینے کے دوران کم از کم 5-6 مرتبہ فون کی گھنٹیاں بجی۔
और हर मर्तबा वो नौजवान यही कहता था कि भाई उनके पास जगह नहीं है, ना जाने कैसे बेवकूफ लोग हैं, अब हमने क्या ठेका ले रखा है हर एक को बाहर ले जाने का। उसने आखिरी फोन सुनकर मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा और मेरी माँ ने उसके जवाब में फौरन सर हिला दिया। माफ कीजिएगा, आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं मिस रोजी को इंटरव्यू के लिए ले जाऊंगा। उसने मेरी माँ से बड़े मुअद्दिब लहजे में इजाजत तलब की। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरी माँ की तो मुराद बर आई थी। मैं उसके इशारे पर सहरज़दा सी उठकर चली गई। दूसरा कमरा उससे मिलता जुलता था और इंटरव्यू लेने वाला भी वही था। एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में ख्याल ना आया कि आखिर उसने मेरी माँ से अलहदा होना क्यों जरूरी समझा था। माफ कीजिएगा, क्या आपकी अम्मी भी बाहर जाएंगी? उसने मुझे एक आरामदेह सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए एक कीमती सिगरेट सुलगा कर पूछा। जी नहीं, मैंने खसियानी हंसी हंसते हुए कहा। बुरा ना मानिए, मैंने इसलिए पूछा था कि वो आपके साथ जो आई हैं। वो मुस्कुराता हुआ मेरे सामने ही एक शानदार सोफे पर बैठ गया। जी नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने न जाने क्यों ये फिक्रा कहकर उसकी गलत फहमी में मजीद इजाफा कर दिया। इंटरव्यू के दौरान सिवाय उसने मुझसे फ्री होने की कोशिश की और कुछ नहीं किया। एक भी सवाल उसने नर्सिंग के बारे में ना पूछा था। फिर भी मैं समझ ना सकी। वाह रे दौलत, वाह रे डॉलर और रियाल, वाह रे पाउंड। आधे घंटे तक हम दोनों गुफ्तगू करते रहे। फिर वो मेरे साथ ही उसी कमरे में लौट आया जहां मेरी माँ भी बेचैनी से नतीजे की मुंतजिर थी। आप बेफिक्र हैं आंटी, मुझे आप लोगों से उन्स सा हो गया है। आपके करीब ही मेरे एक रिश्तेदार भी रहते हैं, मैं उस तरफ से गुजरता रहता हूँ। जल्द ही हम आपको नतीजे से मतला कर देंगे। बेटे, हमारे यहाँ भी जरूर आना। बिल आखिर मेरी माँ उसके जाल में मुकम्मल तौर पर फंस गई और 5वें छठे रोज ही उनका बेटा हमारे घर आ गया। मैं उस वक्त घर पर नहीं थी, ड्यूटी पर थी। उसने मेरी माँ से कहा कि वो इस कंपनी का मैनेजर है। इंटरव्यू का नतीजा दीगर ओहदेदारों को बता दिया गया है। फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन वो रोजी को जरूर बाहर भेजेगा। उसने मेरे घर वालों पर जादू कर दिया था और ऐसा क्यों ना होता। हवीस ने उनकी आंखों पर पट्टी जो बांध दी थी। मेरी माँ बाजिद थी कि वो अपनी मसरूफियात के बावजूद रोजी से मिलकर जाए। मेरी छोटी बहन ने मुझे अस्पताल फोन करके फौरन घर आने को कहा। जब मैं घर पहुंची तो मेरे वालिदैन उसके आगे पीछे बिछे जा रहे थे और मेरी छोटी बहन उसके लिए तीसरी मर्तबा चाय बनाकर ला रही थी। मुझे देखते ही मेरी वालदा खिल उठी। लो भाई, अब तुम लोग बैठो, मुझे तो घर के काम काज करने हैं। मेरी माँ बहाना बनाकर उठ गई। अब मैं और वो अकेले ही कमरे में मौजूद थे। मेरी माँ भी मुझे बर्बाद करने पर तुल गई थी। मेरा नाम रमीज है मिस रोजी, और मुझे हैरानी है कि आपने अभी तक मुझसे मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। आप शायद ये सोच रही हैं कि मैं कोई आम सा नौजवान हूँ और आप पर डोरे डाल रहा हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि मेरा ताल्लुक जिस फर्म से है वहाँ मुझे रोजाना दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों से वास्ता पड़ता है। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है मिस रोजी। अगर मेरा कोई ऐसा ही गलत इरादा हो तो आप ही सोचिए कि मेरे लिए रुकावट क्या है। शायद आपको मेरे खलूस पर अब भी यकीन ना आए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी सादगी ने मुझे मुतासिर किया है। उसने बगैर कोई तमहीद बांधे एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। उसके इस बात में खासी माकूलियत नजर आई कि आखिर इसको कमी किस बात की है। अगर उसने कोई गलत मकसद ही हासिल करना है तो इस शहर की दर्जनों खूबसूरत लड़कियां उससे दोस्ती के लिए बेकरार रहती होंगी। मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा आदमी मुझ पर मर मिटा है। तकरीबन 1 घंटे तक हम तन्हाई में गुफ्तगू करते रहे और जब वो वापस जाने लगा तो मैं वाकई उसकी गर्विदा हो चुकी थी। जाते जाते उसने अगले रोज बाहर मिलने का वादा ले लिया। अगले रोज मैं एक शानदार कार में बैठकर शहर के सबसे महंगे होटल में उसके साथ खाना खा रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। किसी ऐसे होटल में जाने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। यहाँ आकर एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी रंगीन है। शायद उस होटल के बैरे रमीज को पहले से जानते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो गुजरता वो बाअदब खड़े होकर उसे सलाम कहते थे। मैंने जल्द ही इस बात का अंदाजा लगा लिया कि रमीज कोई बहुत गैर मामूली शख्सियत का हामिल है और मेरे तसव्वुरात से भी बड़ा आदमी है। उस रात उस शानदार होटल के एक कोने में बैठे हुए हम दोनों ने हमेशा के लिए एक साथ जीने मरने का अहद किया। उसने मुझसे नौकरी छोड़ देने का कहा और मैंने अगले रोज नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
मुलाकात के बाद तीसरे रोज ही फर्म की तरफ से 40,000 रुपए का ड्राफ्ट और एक खत मिला जिसमें लिखा था कि मुझे मुंतखब कर लिया गया है और अब मुझे 1 माह कराची में खसूसी ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के अखराजात कंपनी बर्दाश्त करेगी। मेरे माँ बाप के तो पाँव ही जमीन पर न टिकते थे। वो रमीज को दुआ देते रहते। 3 दिन के बाद मैं रमीज के हमराह कराची जा रही थी। हवाई जहाज का सफर, शानदार लिबास, पर्स में ढेर सारे नोट और एक खूबसूरत दौलतमंद नौजवान का साथ। मेरा दिमाग जहाज के साथ साथ अर्श पर परवाज कर रहा था। सफर के दौरान रमीज ने बताया कि इसका तबादला भी बाहर हो रहा है जहां हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। मैं दिल ही दिल में मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने लगी। रोजी, हम मिडल ईस्ट पहुंचते ही शादी कर लेंगे। उसने जहाज के लैंड करते वक्त मुझे ये खुशखबरी सुनाई। कराची में हमारा कयाम एक बंगले में हुआ जो शायद इस फर्म ने इसी मकसद के लिए हासिल कर रखा था। 2-3 दिन तो उसने सिर्फ मेरा एतमाद ही हासिल किया। इसी इसना में उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो फरिश्ता है। कम अज कम मैं तो उसे ऐसा ही समझने लगी थी। चौथे रोज एक शदीद जज्बाती कैफियत से गुजरने के बाद हमने बहुत से मराहिल तय कर लिए। मुझे अपने लुटने का उस वक्त कोई एहसास ना हुआ क्योंकि रमीज ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा हम जल्द ही मियाँ बीवी के रिश्ते में बन जाएंगे और मैं मुतमईन हो गई। 1 माह पलक झपकते ही गुजर गया। सारा दिन कराची की सैर, समंदर किनारे अयाशियां और अमीराना ठाट बाट से किसी रानी की तरह जिंदगी गुजारना। ट्रेनिंग कब और कहाँ शुरू होगी इसका इल्म ना था। जब भी मैं शादी के लिए कहती तो वो दिलासा देता, तुम खामखा घबरा रही हो, बस कह जो दिया कि 3 माह के अंदर हम बाकायदा शादी कर लेंगे। मैं तो तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने माँ बाप की इजाजत से लेकर जाऊंगा और मैं मुतमईन हो जाती। वक्त गुजरता रहा। 1 माह के बाद मेरा वीजा आ गया। हवाई अड्डे पर रुखसत करने के लिए रमीज भी मौजूद था। मेरी दोनों साथी लड़कियां मेरे लिए अजनबी थी। इनको गालिबन किसी दूसरे शहर से लाया गया था। मेरा और उनका तारुफ भी हवाई जहाज पर ही हुआ। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो दोनों मुझसे क्या एक दूसरे से भी खींची थी, जैसे इनको किसी ने खास तौर पर अपने मुतल्लिक कुछ न बताने की हदायत की हो। रमीज ने जाते हुए मुझसे कहा था कि वो भी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएगा। इसी इसना में उसे अपने माँ बाप से भी शादी की इजाजत मिल जाएगी। मैं मुतमईन होकर एक शानदार मुस्तकबिल की उम्मीद लिए मिडिल ईस्ट जा रही थी। हवाई अड्डे पर लेने के लिए किसी अस्पताल की नहीं, एक आम सी मगर शानदार गाड़ी आई थी। इस गाड़ी का ड्राइवर पाकिस्तानी था जिसकी शक्ल से ही मालूम हो रहा था। हम तीनों को एक खूबसूरत और जदीद तर्ज की बनी हुई एक कोठी में पहुंचा दिया गया। मैं तो उसे महल ही कहूंगी। इस महल में पहले से ही बेशुमार कमरे सजाए गए थे। कोठी के अंदर हमारा इस्तकबाल एक गैर मुल्की खातून ने मुस्कुराते हुए किया। हॉस्टल में हमें सबसे ऊपर वाले हाल पर अलग अलग कमरे अलाट किए गए। एक बूढ़ी हमारी इंचार्ज थी। वो रात मैंने डरते डरते गुजारी। यहाँ दूसरे मुमालिक की भी 10-12 लड़कियां मुकीम थी, लेकिन मैंने वहाँ किसी को भी जरूरत के बगैर एक दूसरे से बात करते ना पाया। यूं दिखाई देता था जैसे उन्हें सख्ती से एक दूसरे से बोलने की मुमानियत हो। खाना कमरे में पहुंचाया जाता था। सुबह एक वैगन में जिस पर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया। मैं उसे अस्पताल तो नहीं कहूंगी, एक डॉक्टर की दुकान ही कह ले, जिसमें शायद 2-3 मरीजों के दाखिले की गुंजाइश रखी गई थी। यहाँ इस पाकिस्तानी मर्द ने जो मुझे हवाई अड्डे पर लेने आया था बताया कि मुझे 6 घंटे रोजाना काम करना पड़ेगा और शाम के वक्त गाड़ी वापस हॉस्टल छोड़ आया करेगी। सुबह सुबह ही लड़कियों ने खुद को बनाना संवारना शुरू कर दिया था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इस नर्सिंग होटल में कारें आना शुरू हो गई थी। कार दरवाजे पर रुकती और कोई एक बनी संवरी लड़की कार में बैठकर चली जाती। या अल्लाह, मैं किस अजाब में फंस गई हूँ, मैंने सोचा। फिर ख्याल आया कि ये सब कुछ कहाँ नहीं होता, हर इंसान का अपना किरदार होता है। हमारे मुल्क में भी तो मेरी साथी नर्सें यही कुछ किया करती थी, लेकिन सब की सब नहीं, सिर्फ चंद नर्सें। अगर मैं वहाँ महफूज रही हूँ तो यहाँ भी रहूंगी। बहरहाल अपने किरदार को ठीक रखना अपने बस में होता है। कोई लठ लेकर तो मेरे पीछे नहीं घूम रहा। फिर मुझे इस बात का यकीन भी था कि जल्द ही रमीज आ जाएगा और हम शादी कर लेंगे। रमीज वाकई उस रोज रात की फ्लाइट से आ गया। उसने मुझे बताया कि मेरे बगैर उसने बड़ी मुश्किल से ये हफ्ता गुजारा है। मैंने अपने पेट में पलने वाले गुनाह की तरफ इशारा करते हुए जब उससे वालिदैन के फैसले के मुतालिक पूछा तो उसने हंसकर बात ही टाल दी।
आओ कहीं सैर करने को चलते हैं। बात आई गई हो गई। हम दोनों एक शानदार कार में बैठकर रमीज की एक दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गए। सारे रास्ते वो मुझे बताता रहा कि जो लड़कियां यहाँ आजाद हो जाती हैं वो बहुत शानदार जिंदगी गुजारती हैं। उसके लहजे में वही तरगीब दिलाने का अंदाज था। आज सोचती हूँ तो अपनी सादगी पर खुद ही मर जाने को जी चाहता है। मैंने उस वक्त भी उसकी नीयत पर शक न किया। रमीज का दोस्त पाकिस्तानी सरमायादार था जिसकी उम्र कम अज कम मेरे वालिद के बराबर थी। उस शख्स का शुमार यहाँ के मुतमूल लोगों में होता था। उसे इस मुल्क की शहरियत भी हासिल थी। मकामी लोगों से उसकी गाड़ी छनती थी। इन सारी बातों का मुझे रास्ते में ही इल्म हो गया था। रमीज ने मुझे ये सब कुछ किसी नुक्ता नजर से बताया था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी का अंदाजा फरमाइए कि मैं दिल ही दिल में इस बात से मरऊब हो रही थी कि मेरे महबूब के ताल्लुकात कितने बड़े लोगों से हैं। उस शख्स ने बड़े ही फराख दिली से हमारा इस्तकबाल किया और मुझसे जबरदस्ती मुसाफा भी कर लिया। रमीज ने मुझे पहले ही कह रखा था कि मुझे यहाँ आकर मगरबी तौर तरीके अपनाना होंगे और ऐसी बातों का बुरा नहीं मानना होगा। हम एक शानदार कमरे में बैठे बातें करते रहे कि रमीज टॉयलेट के बहाने बाहर चला गया। रमीज के बाहर जाते ही उस शख्स ने मुझ पर दस्त दराजी शुरू कर दी। मेरे वहमो गुमा में भी ये बात नहीं थी। मैंने पहले तो यही समझा कि वो शख्स शराब के नशे में बहक गया है, इसलिए उसको खुद से दूर रखने की कोशिश करने लगी। जब वो काबू ना आया तो मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई, जहाँ बरामदे में रमीज खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैंने लपक कर उसका बाजू थाम लिया। ओह रोजी, तुम्हें ना जाने कब समझ आएगी, आखिर पेंडू ही निकली ना। इतना कहकर वो मुझे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ एक कमरे में ले आया। ये कमरा क्या था? छोटा सा सिनेमा हॉल दिखाई दे रहा था। यहाँ बैठो, उसने मुझे कोने में रखी गई आरामदेह कुर्सी पर ढकेलते हुए कहा। मैं हैरान और परेशान वहाँ बैठ गई। मेरा जहन मौफ हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करने वाला है और क्या चाहता है। कमरे में मौजूद एक बड़े से प्रोजेक्टर का बटन दबाकर वो मेरे करीब ही बैठ गया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर फिल्म चलनी शुरू हो गई थी। चंद लम्हों तक तो मेरी समझ में ही ना आया ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब रफ्ता रफ्ता गर्दोपेश का एहसास हुआ तो मुझे झटका सा लगा, जैसे बदन बिजली की नंगी तार से छू गया हो। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन को घूरने लगी, जहाँ कराची के एक होटल के एक कमरे का मंजर नजर आ रहा था, जहाँ मैंने रमीज के साथ तन्हाई में कई रातें गुजारी थी। कमरे के किसी खुफिया गोशे में छुपे कैमरे ने मेरे सारे गुनाह स्लाइड पे मुंतकिल कर लिए थे। जो जो फिल्म चलती जा रही थी मेरी हालत गैर होती जा रही थी। यूं महसूस हुआ जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। कमरे की सारी चीजें घूमती नजर आ रही थी। मैं जोर से चिल्ला उठी, बंद करो, खुदा के लिए से बंद करो। चिल्लाती क्यों हो? उसने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। जलील, धोखेबाज, न जाने दुनिया के कौन कौन से अलकाब से मैंने उसे नवाजा, लेकिन वो बेगैरतों की तरह मुस्कुराता रहा। मैं सिसकियां लेती हुई उसके कदमों से लिपट गई और गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की, मेरी कोख में तुम्हारी निशानी है, मुझ पर रहम करो, मुझसे शादी कर लो, मुझे पाकिस्तान भेज दो या मेरा गला दबा दो। अगर मेरे कहने पर अमल करती रही तो जिंदगी भर ऐश करोगी, मुलाजमत बरकरार रहेगी और हर माह तुम्हारे वालिदैन को 40,000 पहुंचते रहेंगे। साल में एक बार छुट्टी भी और जमाने भर की सहूलतें भी, लेकिन सिर्फ आमादगी की सूरत में, वरना तुम्हारा पासपोर्ट हमारे पास है। यहाँ कोई तुम्हारी फरियाद पर कान नहीं धरेगा, उल्टा तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो हशर तुम्हारा होगा वो तो होगा ही, लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारे माँ बाप बेगुनाही मारे जाएंगे। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये फिल्म इंटरनेट पर चला दी गई तो तमाम दुनिया देखेगी। मैं उसके खौफनाक नतीजे से सहम गई। मैं बज़ाहिर आजाद लेकिन अंदर से मुकम्मल कैदी बन चुकी थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, सीधी तरह से हमारे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो। मुझे तन बदन का होश नहीं था। मैं सहरज़दा सी उसके पीछे पीछे खींची चली जा रही थी और वो बोल रहा था, रहा बच्चे का मसला तो तुम खुद नर्स हो, उसका इलाज बखूबी जानती हो। अगर चाहो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। उसने मुझे इस कमरे में जिससे निकलकर भागी थी धकेल दिया। कमरे में वो शैतान पहले से ही मेरा मुंतजिर था, क्योंकि उसे मालूम था कि रमीज मुझे वापस उसके पास ले आएगा। फिर वो मरहला भी आ गया जब आंसुओं के सोत खुश्क हो जाते हैं।
कोई रोना भी चाहे तो रो नहीं पाता। अगली सुबह रमीज मुझे खुद ही हॉस्टल छोड़ गया। यह मुंतजिम मुंतजर थी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। आराम कर लो, थक गई होगी, अब तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी है। सैर करने को दिल चाहे तो मुझे बता देना, उसने बड़ी दिलजोई करते हुए कहा। 3-4 रोज के बाद मैंने अपनी जिंदगी का बदतरीन गुनाह भी कर लिया और अपने गुनाह की निशानी का अपने ही हाथों गला घोंट दिया। इस खतरनाक गिरोह के शिकंजे में फंसकर बगावत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 2-3 महीने में ही मुझे ऐसी ऐसी बातों का इल्म हुआ कि खौफ के मारे जान निकल जाती थी। उन्हें जिस लड़की पर भी शक गुजरता, उसकी किसी न किसी बहाने दुनिया से छुट्टी हो जाती थी और किसी को कानो कान खबर भी ना हो पाती। बड़े बड़े अफसरान अयाशी के लिए उनके मोहताज थे। जिंदगी बड़ी जालिम है। आप कितना ही फरार हासिल करना चाहें, वो आपको हालात से समझौता करने पर मजबूर करके रख देती है। मेरी हैसियत ही क्या थी, एक नातवा बेकस लाचार लड़की। मैं उनका क्या बिगाड़ सकती थी? मैं तो बुज़दिल थी, मरने से भी डरती रही। मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह हथियार फेंक दिए। मेरे साथ आने वाली दूसरी लड़कियों की कहानियां भी बिल्कुल मेरे जैसी थी, सिर्फ किरदार बदल गए थे। मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था और वो था रमीज से इंतकाम लेना, क्योंकि वो मेरी बर्बादी का जिम्मेदार था। इसके लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। एक शख्स जिसकी उम्र कम से कम 60 साल थी और अपने मुल्क में एक आला ओहदे पर फाइज था। कौन जाने मेरी कौन सी अदा उसे पसंद आ गई जो वो मुझे अपने साथ ही ले गया। मैं उसके बंगले में रहने लगी। मैंने उसका मुकम्मल एतमाद आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर लिया था। उसका अपना एक हिफाजती दस्ता था जो हर वक्त उसके महल नुमा बंगले में मौजूद रहता था। वो भी मुझे अहमियत देते थे। मालिक ने मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां नरम कर दी थी। मैं महीने में एक आध बार जो हॉस्टल जाती थी और अपनी बदनसीब साथियों से मिल आती, उनसे तो बहरहाल मैं ज्यादा खुशकिस्मत थी। एक रोज बाजार में मेरी मुलाकात रमीज से हुई। उसने दामन बचाकर निकलना चाहा, लेकिन मैंने आवाज देकर उसे पास बुला लिया। मेरी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा था, मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं उससे बिल्कुल नाराज नहीं बल्कि तजदीदे मोहब्बत करना चाहती हूँ। मेरी चिकनी चिपड़ी बातों के सामने उस शैतान की सारी मकारी धरी की धरी रह गई। 2-3 मर्तबा मैंने उससे बाहर मुलाकात की और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। मंसूबे पर अमल करने के लिए मैंने वो दिन मुंतखब किया जब मालिक दौरे पर किसी दूसरे शहर जा रहा था। मैंने रमीज को घर आने पर राजी कर लिया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन मेरी जिद के सामने उसे हथियार डालने पड़े। उधर मैंने हिफाजती दस्ते से कह दिया कि ये बुरी नीयत से आ रहा है। उसने महल में दाखिल होना चाहा। उसे गिरफ्तार करके मेरे हजूर पेश किया गया। पहले तो मैंने उसे कोड़े से जी भर कर पीटा और भड़ास निकलने के बाद उसे समंदरों की लहरों के हवाले कर दिया। जिंदगी सिसक सिसक कर रेंगती रही और रेंग रही है। मैं साल में एक बार अपने मुल्क आती हूँ। मेरे माँ बाप आज शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। जिंदगी की वो कौन सी आसाइश है जो उन्हें मयसर नहीं? क्या हुआ जो उनकी बेटी की कमाई है? आखिर उनका मुझ पर भी तो कोई हक है। उन्होंने मुझे पाला पोसा, जवान किया, तालीम दिलवाई और बाहर भिजवाया। आप इसे मेरा घटियापन कह लें या जज्बाती गधापन, लेकिन ये कहने में कोई बात नहीं कि मेरी बर्बादी में सबसे ज्यादा हाथ मेरे माँ बाप का है। हवीस ने उन्हें अंधा कर रखा था।